तुम में से जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अल्फा मेल या फिर टॉप जी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। अगर तुम नहीं जानते कि व्हाट इज टॉप जी या फिर अल्फा मेल किसे बोलते हैं तो मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। टॉप जी इज दैट पर्सन दैट कैन फियर बाय एवरीवन and respected by everyone. The person is more popular among young generation and जितने वो अपने ओपिनियन पास करता है, फैक्ट्स बोलता है, वो कहीं ना कहीं 100% ट्रू ही होते हैं एंड ऑलमोस्ट सारे लोग उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें एंड तब हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज अल्फा मेल या फिर टॉप जी। अब जब मैं तुम्हें सारे क्राइटेरिया बता रहा था कि अल्फा मेल के अंदर और टॉप जी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में एक नाम स्ट्राइक कराओ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड्रयू Tate. And if you don't know who is Andrew Tate, then there is something wrong with you. Carry a child for 9 months. If you're not gonna, sorry, risk. my headphones fell off. If you're not gonna have, if you're not gonna have children, what are you gonna do with your lives? If I'm not gonna have children, travel, just pursue anything that makes me happy. Try to make money. The same thing, like travel, focus on my career, things like that. Like my career will become my baby. What about you? I honestly just want to get right into my career. Yeah, Miss Cuba, what about you? Do whatever the fuck I want. Okay. It doesn't matter. Well, I plan on becoming a doctor. So I'm just my career. Your career. I'm passionate about it, so. And it's inane and it's pointless. And you may sit here and think that your career matters, but the truth is that your job will fire you at a whim and not give a second. Don't give a solitary shit. And when you're 52 and you're past it with no grandchildren in a house by yourself, and all your friends have grandchildren in this beautiful life, and you're sitting there by yourself, you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? I was at my grandmother's 93rd birthday. I looked there. My grandmother had 9 children. There was my father and 8 more. They all had a bunch of kids, blah, blah, blah. I stood there and I looked at my 93-year-old grandmother, and there was a room, a whole room full with maybe 70 people that came from that one woman. Isn't that remarkable? Yeah. That nobody cared about her career. Nobody asked what job she did. Nobody asked how many times she went to the club. Nobody asked if she had time to go to festivals. No, you had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. And if you sit here and genuinely think that you're going to work your ass off through your fertile years and by the age of 54, you're not going to be suicidal alone with a cat, then you're dumb. एंड्रयू टेट इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें बोलता है, फिर अपने ऐसे ओपिनियन पास करता है जो कई बार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डोमिनेट भी करती है एंड ही गिव्स जीरो फक्स। वो कोई टेंशन नहीं देता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इंटरनेट पर आता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो चला जाता है एंड दैट्स द रीजन पीपल कॉल हिम मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट इज दैट पर्सन दैट कैन हेट गर्ल्स एंड द पॉइंट इज दैट कि इस बंदे में ऐसा क्या है कि इंटरनेट पर आता है और ऐसी बातें बोल जाता है और कोई से कुछ क्यों नहीं बोलता। ये आता है चाहे दूसरे को वो बातें बुरा लगे या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो डिफेंड करे या फिर लो फील करवाए, वो बोलकर चला जाता है और कोई भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। और क्यों लोग इससे डरते हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई कॉल हिम इंटरनेट गैंगस्टर। Andrew Tate is from Washington DC, but he lived in Romania because Romania is corrupt. वो इस करप्शन का फ़ायदा उठा के वहाँ पे अपने हिसाब से रह सकता है, अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकता है। मतलब वो एक ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ का वो खुद एक किंग है। वो अपने हिसाब से अपनी वहाँ पे इजीली लाइफ जी सकता है एंड दैट्स वाई ही चूज रोमेनिया एंड ही इज़ द ओनली पर्सन जिसके पास कॉपर कलर की बोगाटी शेरॉन है एंड देयर इज ओनली वन कार इन होल वर्ल्ड। अब ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई, क्योंकि यही इस वायरल क्लिप के पीछे का रीजन है। Mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? एंड्रयू टेट का एक भाई भी है, ट्रिस्टन टेट। वो उसके साथ पॉडकास्टिंग करते हैं और स्ट्रीमिंग करते हैं ट्विच पर एंड ही इज द मोस्ट सर्च पर्सन ऑन गूगल इन 2022। एंड्रयू टेट मोस्ट सर्च पर्सन की लिस्ट में एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। तुम खुद ही सोच सकते हो कि इस बंदे की पॉपुलैरिटी क्या है एंड एंड्रयू टेट इज मोस्ट व्यूड पर्सन ऑन टिकटॉक
विदाउट हैविंग एन अकाउंट। तुम खुद ही सोच के देखो कि एक ऐसा पर्सन जिसका एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे खुद का एक ऑफिशियल अकाउंट नहीं है एंड लोग उसे फिर भी उस प्लेटफॉर्म पे देखना पसंद कर रहे हैं, उसे सुनना पसंद कर रहे हैं। एंड्रॉइड के बहुत सारे फैन पेजेस है जो उसके पॉडकास्ट में से, जो इसको इंटरव्यू में से वीडियो क्लिप्स काट कर टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। लोगों को एंड्रॉइड को देखना और सुनना पसंद है एंड दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट व्यूड पर्सन ऑन टिकटॉक। तुम इस बंदे की यहाँ से दिखा सकते हो कि इस बंदे के वर्ड्स में, इस बंदे की स्पीकिंग स्किल्स में, इसके ओपिनियंस की लोग कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कितने ध्यान से सुन रहे हैं। एंड्रू टेट इज किक बॉक्सर बाय प्रोफेशन। ही लव्स फाइटिंग एंड राइट नाउ एंड्रू टेट हैज ऑलमोस्ट 20 सुपर कार्स एंड दैट्स द रीजन ही इज सो रिच। और वो इस चीज को अपने पॉडकास्ट पे भी बोले थे। And I realized yesterday that I can actually, genuinely, right now, nothing is stopping me from becoming Batman. Nothing. I have a Batcave. Okay. Yep. I have an Alfred. Okay. I have a Batmobile, a Bugatti. Yep. I can fight. Yep. Rich as fuck. You can afford body armor and all the crap that All the Batman crap, needs. can buy it all. I'm charismatic. There is nothing stopping me putting on a suit and being Batman. Not pretending to be Batman. Actually, 100% being Stop Batman. being criminals. Andrew Tate and his brother Tristan Tate are very close and their bond was unbreakable. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे वर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें या फिर हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई पड़ जाए। एंड दैट्स द रीज़न कि वो एक साथ ट्रैवल भी करते हैं। उन दोनों भाइयों का सेम बैंक अकाउंट भी है, वो सारा मनी अपने सेम बैंक अकाउंट में रखते हैं और वो कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो सेम कार में, सेम प्लेन में, ताकि कई बार अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो वो दोनों एक साथ ही रहें। कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह का भाईचारा इन दोनों में। एंड वन डे एंड्रू टेट रियलाइज कि दे आर एक्चुअली अ माफिया ऑफ रोमानिया बिकॉज दे आर रिच, दे हैव फाइटिंग स्किल्स और लोग उनसे डरते भी है एंड ऑल दिस थिंग्स रिप्रेजेंट अ माफिया। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एंड्रू टेट बना कैसे। इट मीन्स कि क्या ये बचपन से इतना अमीर और पावरफुल था? ये हुआ कैसे? इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्योंकि बिफोर द एज 25 दोनों भाई टोटली ब्रोक थे। इट मीन्स उनके पास कोई भी मनी नहीं था और उन्हें खाना खाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था। इस टाइप की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। पर ऐसी कंडीशन के बाद उनके पास इतना कैसे पैसा आ गया कि वो वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट मैंस में भी अब आते हैं। वो अब इतने मिलियनेयर है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आखिर ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? एंड दिस ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एट द एज ऑफ 21 जब दूसरे भाई ट्रिस्टन टेट का बर्थडे था। As a true story. I was 21 years of age. This is not long ago. 21 years of age. Yesterday was my birthday. And me and Andrew, what did we eat on my birthday? KFC. Why did we eat KFC? Because when I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom. And I used to sit in my car. And you couldn't ever eat anyone's leftover food if they ever had their mouth on it. But at KFC, they used to buy buckets. And I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken that were perfectly fine left in the buckets. And I used to go home and I used to freeze that chicken. And me and Andrew would break it up, put it in our rice, and that was our meal. That's what sustained us for that hard year. That year we had when I was 21 and you were 22. That's how broke we were. I used to scavenge chicken from KFC because I thought, fuck it, I'm not dying and I'm not losing my kickboxing fights because I don't have enough protein. What am I going to do to make it through the day? That's how broke I was. And that's a sad story if you never make it out. To me, that's a happy story. That's a story of triumph. दोनों भाई इतने ज़्यादा गरीब थे और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी तो इतना पैसा आया कहाँ से? वन डे एंड्रू टेट वॉज वेरी एंग्री। ही सो कि ऐसी क्या चीज़ है जो अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को गरीब? ऐसी क्या बीच में लाइन है? ऐसा क्या चीज़ है जो हमें अमीर बनने से रोक रही है? उन्होंने देखा कि हम यहाँ पैसों के लिए और खाने के लिए रो रहे हैं और वहीं हमारे घर के बाहर लोग लैम्बोर्गिनीज में घूम रहे हैं। ऐसा क्या फॉर्मूला है जो हम मिस कर रहे हैं ताकि हम भी अमीर बन सके? एंड ही टोल्ड हिज ब्रदर कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना है। तो जब तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक मुझे कोई फार्मूला नहीं मिल जाता अमीर होने का। एंड हिज ब्रदर सेज ओके। एंड एंड्रू टेट अपने रूम में जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं एंड ही स्टार्ट सर्फिंग इंटरनेट। वो अपने पीसी को ओपन करते हैं और वो सर्च करने लग जाते हैं कि व्हाट इज़ मनी, एक्चुअली में मनी क्या है और मनी कैसा काम करता है, उसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, क्या चीज़ें हैं कि हम मनी को ज़्यादा एक्वायर कर सके, ऐसी क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं। सो व्हाइल एंड्रू टेट सर्चिंग ही वाज मेकिंग अ लिस्ट जिसमें लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में वो लिख रहे थे।
लायबिलिटीज आर दोस्त जो तुमसे पैसा छीने एंड एसेट्स आर दोस्त जो तुम्हें पैसा लाके दे। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग अ लिस्ट जिसमें वो सबसे पहली चीज़ को लिखते हैं एसेट्स में हिज फाइटिंग स्किल्स, हिज फाइटिंग करियर, जो वो ऑलरेडी इन यूज़ लगा चुके थे। एंड उन्हें सोचा कि ऐसी अब और क्या चीज़ है। एंड ही थिंकिंग अबाउट हिज ओल्ड कार, वो जिसे ना के बराबर ही एक एसेट मानते थे क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी टूटी फूटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस चीज़ को एसेट्स में काउंट कर लिया। एंड्रू टेट रियलाइज़ कि उनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप जाते थे खेलने और वहाँ पे वो काफ़ी बार जीते भी थे। सो ही मेक्स मैनी गर्लफ्रेंड्स एंड ही थिंक्स कि इनकी ये गर्लफ्रेंड्स भी एसेट्स हो सकती है, बट ही डोंट नो हाउ। तो ऐसे ही एक दिन एंड्रू टेट इंटरनेट सर्व कर रहे थे एंड वो देखते एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे गर्ल्स लाइव चैट कर रही है, वेबकैम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एंड वो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि लोग उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे, डोनेशन कर रहे थे, $1000 की, लाख डॉलर्स की डोनेशन कर रहे थे। एंड ही सो कि ये चल क्या रहा है, क्या सीन हो रहा है कि लोग इतना ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं इन सर्विसेज में। एंड ही थिंक्स एन आइडिया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड ही टोल्ड हिज ब्रदर कि मुझे एक आइडिया मिल गया है और जिससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और हम भी रिच हो सकते हैं। सो एंड्रू टेट डिसाइड टू कॉल ऑल ओवर हिज गर्लफ्रेंड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने उन सब गर्लफ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाया ताकि वो बिजनेस आइडिया को डिस्कस कर सकें। एंड जैसे ही वो सारी गर्लफ्रेंड्स घर पर आई, एंड्रू टेट ने अपना आइडिया बताना डिस्कस करा एंड उन्हें बताया कि हम ऐसे करके अपना कंपनी खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे हम सब रिच हो सकते हैं, और जिसको काम नहीं करना गेट द फक आउट ऑफ हेयर। इतना बोलने के बाद 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां राजी हो गई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड्रू टेट का पहला बिजनेस। एंड ये बिजनेस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि ये एंड्रू टेट $500 कमा रहे थे पर मंथ। एंड धीरे धीरे इनका ये बिजनेस बढ़ता रहा एंड दे आर गेटिंग रिच। तुम ये सोच के देखो, एंड्रू टेट ने ये बिजनेस अपना तब स्टार्ट करा जब ठीक से इंटरनेट चलता भी नहीं था, जब वीडियोस भी इंटरनेट पर रुक रुक के चलती थी, लैग करती थी, काफ़ी ज़्यादा बफरिंग होती थी। उस टाइम पर एंड्रू टेट ने अपना ये बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे, उनका ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड एंड्रू टेट ने अपने भाई से बोला कि अब हमें और ग्रो करना है, हमें और ज़्यादा फेमस होना है, हमें और ज़्यादा पैसा कमाना है, इसके लिए हमें अपनी और बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, हमें और कंपनीज खोलनी पड़ेंगी। सो बोथ टेट ब्रदर्स मूव्स टू रोमानिया एंड ही ओपन्स मल्टीपल कैसीनोज एंड हिज ब्रदर ट्रिस्टन टेट हैंडल्स ओनलीफैंस कंपनी, जहाँ पे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। एंड्रू टेट वॉज बैन ऑन ट्विटर ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। बाय द वे अभी वो अनबैन हो चुके हैं, पर इंस्टाग्राम से वो अभी भी डीएक्टिवेटेड ही है। बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग उनका अकाउंट अभी भी डीएक्टिवेट है, हो सकता है इन फ्यूचर जाके उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। नाउ यू आर रिच, यू आर फेमस and you have multiple audience who are continuously watching you. It's a right time to sell his course. And Andrew Tate is a marketing genius. He made a Hustler University course. He teaches you how to get rich in this model world. इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे जनरल है जिसके अंदर स्टडी करके तुम अपना मनी बना सकते हो, लाइक क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया। और इस कोर्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है, that was by promoting Hustler University, and that's the reason why I call him genius. There is the option of affiliate marketing. जिन लोगों को नहीं पता है affiliate marketing क्या होती है, affiliate marketing के अंदर तुम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके बाद फ़ायदा तो ओवरऑल कंपनी को होता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट को सेल करने के बाद तुम्हें उसमें से कुछ पार्ट कमीशन मिल जाएगा। तुम यहाँ से समझ सकते हो कि अगर कोई पर्सन इस हसलर यूनिवर्सिटी की एफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो जैसे ही वो पर्सन इस हसलर यूनिवर्सिटी का कोर्स सेल करेगा तो उसे कुछ पार्ट कमीशन का मिल जाएगा। यहाँ से लोगों को एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जब कोई पर्सन उसके लिंक से टैप कर कर उसके कोर्स को परचेज करेगा, एंड जिस पर्सन ने वो लिंक जनरेट करा है उसे कुछ पार्ट कमीशन का मिल जाएगा, एंड यहाँ से लोग पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे एंड्रू टेट के फैन पेजेस हैं और जो काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं रेगुलरली, ताकि जब भी कोई पर्सन उनकी वीडियो देखे और उनकी डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के क्लिक कर कर उनका कोर्स परचेज करे तो उस पर्सन को भी कुछ पार्ट कमीशन का मिले। एंड दैट्स वाई एंड्रू टेट इज़ अ फकिंग जीनियस कि वो एक हिसाब से अपना कोर्स भी सेल कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसी वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि हु इज़ एंड्रू टेट उनको भी पता लग जाए कि एक्चुअल में ये बंदा करता क्या है। एंड जैसा कि मैं तुम्हें बताया था, ही इज़ द मोस्ट व्यूड पर्सन ऑन द टिकटॉक विदाउट हैविंग एन अकाउंट। तुम यहीं से इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसका कोई ऑफिशियल अकाउंट ही नहीं है और लोगों ने उसकी इतनी ज़्यादा वीडियो डाल रखी है कि उसके वीडियोस पर बिलियंस में व्यूज़ गए हुए हैं।
यस आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। दे बोथ ब्रदर्स आर अरेस्टेड बाय रोमानियन पुलिस, क्योंकि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये लोगों को किडनैप करके ट्रांसफ़र करते हैं एंड ही इज़ द ड्रग डीलर एंड दैट्स द रीज़न दे ऑल आर रिच। एंड पुलिस को ये इन्फो दी गई थी कि उन्होंने अपने घर में एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है। इतने सारे एलिगेशन लगने के बाद एंड्रू टेट के सारे हेटर्स एक साथ आ गए और वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमने तो बोला ही था कि ये बंदा सही नहीं है, इसे जेल में ही डालो। और उस टाइम सारे इसके हेटर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। पर ये सब होने के बाद एंड्रू टेट एंड हिज ब्रदर वाज लाइव ऑन अ स्ट्रीम एंड सेड दिस। A girl had been at a party at my house, and her boyfriend saw her Instagram stories, said, "Oh my God, you're at the Tate brothers' house in Romania." This was some American chick. And she went, I didn't want to come to this party. They made me come here and I'm not allowed to leave. So her boyfriend is obviously one of these believe all females. Oh my God, my girlfriend. 1 second, she wasn't even home. She wasn't even home. He calls the fucking police and says, my girlfriend's being held against her will by the Tate brothers. The police call the American embassy, and the next day, police come to our house. They search our house. They find no drugs. They find no women. They find no people. There's nothing illegal in the house. We're sitting there at the police station. The prosecutor says, yes, we searched your house. I'm like, all right, good. What'd you find? Well, nothing. But the report said that you were holding people hostage. I said, bro, there was no one at my house. He goes, yes, I know. But we checked the CCTV. I said, oh, what did you find? The girl who made the complaints was outside the gates taking pizza delivery and coming back inside. Ha ha ha. So I'm sitting there laughing. The police are laughing. The prosecutor's laughing. And then I went home. एंड्रू टेट ने अपने पॉडकास्ट में कई बार 3 स्ट्राइक्स के बारे में डिस्कस करा है। वो कहीं भी ज़्यादा पॉडकास्ट करते थे, वो इन 3 स्ट्राइक्स को जरूर डिस्कस करते थे। वो 3 स्ट्राइक ये थी कि पहली स्ट्राइक में लोग तुम्हें कैंसिल करेंगे, तुम्हें चुप करवाएंगे। दूसरे स्ट्राइक में लोग तुम्हें पुलिस केस बनाएंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। और तीसरी और लास्ट स्ट्राइक में लोग तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें हमेशा के लिए चुप बिठा देंगे। अब जैसे कि तुम देख सकते हो, एंड्रू टेट के साथ पहली 2 स्ट्राइक एक्चुअली में हो चुकी है। पहली स्ट्राइक में एंड्रू टेट के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करा दिया गया, ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया, इंस्टाग्राम से उनका अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया और दूसरे स्ट्राइक में उनको जेल जाना पड़ा। मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की साइड नहीं ले रहा कि हाँ एंड्रू टेट सही है, इसे जेल नहीं जाना चाहिए, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसे अनदेखा करना चाहिए। मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। हो सकता है कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करो। एंड्रू टेट एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी ऐसे एलिगेशंस पे प्रूव नहीं हुआ कि इसने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी है या फिर ऐसे लड़कियों को किडनैप करके इसने कहीं ट्रांसफ़र करा है। ऐसा कोई अभी चीज़ प्रूफ नहीं हुई है। ये सारे एलिगेशन ऐसे थे कि लोगों ने इन्फो दी एंड पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। ये मिसोजिनिस्ट है, ऐसे इसके ओपिनियन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक गर्ल्स कम्युनिटी को ये डोमिनेट करता है एंड ही गिव्स 0 फक्स। वो अपने आप को कहता है कि मैं रियलिस्टिक हूँ एंड इसके बिहाफ पे उसे कैंसिल होना पड़ता है, उसे जेल जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक छोटी सी बात है कि इसके पीछे इतना सब कुछ हो रहा है। हो सकता है कि एंड्रू टेट को कुछ रियल में ऐसी चीज़ें पता है, कुछ रियल में ऐसी चीज़ है इसके पास जो लोग हर कोई इसे चुप करवाना चाहता है, क्योंकि इसे वो चीज़ पता है। ये अपने कोर्स में वो सारी चीज़ें बताता है, हाउ टू गेट रिच। ये जहाँ पे ये पॉडकास्ट करता है यहाँ पे वो सारी ऐसे बोलता है, आई हैव अ फॉर्मूला एंड आई नो हाउ टू गेट रिच। रिच लोग कैसे रिच बनते हैं एंड इफ़ ही नोज़ हाउ टू गेट रिच, तो अगर लोग भी इसकी देख के चीज़ को फॉलो करें तो हो सकता है कि जब सभी लोग रिच होने लग जाएंगे तो जो एक्चुअली में रिच पर्सन है उसकी तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तुम खुद ही सोच के देखो, एक ऐसा पर्सन है जो पहले से बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके अपोनेंट्स भी सारे रिच हो जाएं। वो भी चाहेगा कि एक जो फासला है, एक जो लाइन है अमीर गरीब के बीच में, वो बनी रहे। एंड एंड्रू टेट वॉज इरेजिंग दैट लाइन। वो फॉर्मूला जानता है, वो बताता है कि हाउ टू गेट रिच। वो लोगों को यही बताता रहता है कि मुझे पता है, मैंने कैसे करा है। एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल हिज फैक्ट्स इन हिज ओपिनियन। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि इसकी मिसोजिनिस्ट आइडिया, फिर ये जो कमेंट करता है लड़कियों के ऊपर, इसके बिहाफ पे इसे जेल जाना पड़ रहा है या फिर इसे कैंसिल होना पड़ रहा है। एक्चुअली में बात कोई और ही है। The most popular man on the internet, his name is Andrew Tate. He's more searched on Google than Donald Trump and Joe Biden. He was permanently banned off of Facebook and Instagram today because he was allegedly misogynistic. Yet Bill Clinton is not banned from social media despite seen with allegedly underage girls on Epstein Island and flying on the Lolita Express 26 plus times. People are freaking out about young boys looking up to Andrew Tate, but they're totally fine with young girls looking up to Cardi B and the Kardashians. Tate's
main message is stop being lazy and making excuses and go work hard and get in shape and make money. Cardi's is do drugs, fuck random men, and go through life as a brain-dead moron. Dozens of rappers have songs glorifying murder, but Andrew Tate's the biggest problem? I mean, think about this. Cardi B has literally gone out publicly and justified date-raping men, of drugging men and stealing from them. So you're gonna tell me that she's a queen and we should all applaud her and she gets to stay on the internet, but Andrew Tate, who's allegedly misogynist, has to go? हो सकता है कि ये मर जाए तो तुम्हें हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये शक बैठ जाए कि हाँ इसे चुप करवाया गया है एंड एक्चुअली में ही नोज ऑल द इन्फॉर्मेशन वेरी वेल, वेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। मैं फिर तुम्हें कहना चाहूँगा कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा कि हाँ वो सही है पर्सन जो ऐसे कमेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट गलत है या फिर जो उसे अरेस्ट कर रही है। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पास कर रहा था। आई होप सो कि तुम लोग भी एग्री करो। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रियल इंटरनेट गैंगस्टर जिसने पूरे इंटरनेट को डोमिनेट कर रखा है।